આજે પર્યુષણ પર્વનો 5મો દિવસ, બુધવાર, તારીખ 19/8/2020. આજે અમને રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ મળેલા છે અને અમારા ખાસ આગ્રહને માન આપીને તેમણે જુનાગઢ એમનું ચાતુર્માસ હોવા છતાં અમોને આજના એમના પ્રવચન માટે સંમતિ આપી તે બદલ અમે સૌ એમને વંદન કરીએ છીએ અને તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય સંત પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ તેઓના ક્રાંતિકારી વિચારો અને એમની કાર્યપદ્ધતિથી સમાજને નવી દિશા અને નવી રાહના દર્શન કરાવે છે. તેઓના આચાર અને વિચારથી પ્રભાવિત થઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી ડબલ ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો અને યુવતીઓ તેમની પાસે દીક્ષા લે છે. એમનો એવો પ્રભાવ અને એવી એમની કાર્યશૈલી અને સમજાવવાની રીત જેને કારણે આ લોકો પણ દીક્ષા લે છે. ગુરુદેવની ધર્મ પ્રચારની ભાવના એટલી ઊંચી છે કે 2015માં અમદાવાદમાં એમનું ચાતુર્માસ હતું એ વખતે એમને વિનંતી કરી તો અમારી વ્યાખ્યાનમાળામાં પ્રવચન માટે એમના 2 શિષ્યા પરમ સંબોધિજી માસતીજી તથા સૌમ્યાજી માસતીજીને 7 કિલોમીટરનો ઉગ્ર વિહાર કરાવીને પણ અમારે ત્યાં વ્યાખ્યાન માટે મોકલેલા અને એ સાધ્વીજીના પ્રવચનથી બધા જ શ્રોતા ભાવવિભોર થયેલ. સેવા કાર્ય માટે તેમણે મુંબઈ, કલકત્તા, હાવડા, જામનગર, વડોદરા વગેરે જગ્યાએ પાવનધામ અને પારસધામ જેવા સંસ્થાઓ બનાવી છે. ત્યાં એમના બિલ્ડિંગો બનાવ્યા છે જેમાં અનેક સેવા કાર્યો થાય છે. તેમની ઉદારતા જુઓ કે મુંબઈ કાંદિવલીમાં તેમને બનાવેલ પાવનધામનો ઉપયોગ તેમણે કોરોના પીડિતોના રહેઠાણ માટે છૂટો મૂકી દીધો અને અનેક કોરોના પીડિતો ત્યાંથી સારવાર લઈને સુખરૂપ ઘેર પરત ફર્યા છે. એ જ એમના આશીર્વાદ અને એવી એમની કાર્યભાવના કે જે બધાને પ્રભાવિત કરે છે અને તેનાથી સમાજના અનેક લોકોને લાભ થાય છે. આવો એવા નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબને આપણે સાંભળીએ. દેવાનો પ્રયાસ ધર્મ જાગૃતિ કેન્દ્રના ઉપક્રમે પર્યુષણ પ્રવચનમાળાના આ આયોજનમાં આજ અમારો ચાતુર્માસ તો જુનાગઢમાં ગિરનારના આંગણે જ, પણ અમે અમદાવાદના આંગણે આવ્યા જ આ લાઈવ પ્રવચન દ્વારા પ્રભુનો બોધ સર્વના હૃદય સુધી પહોંચે ત્યારથી ધર્મ જાગૃતિ કેન્દ્રે જે આયોજન ગોઠવ્યું છે અમારા મંગળ આશીર્વાદ છે. મોસ્ટલી ગુજરાતી હિન્દી વર્ગ હોવાથી અમારા પ્રવચનો અમે વધારે હિન્દીમાં જ આપી રહ્યા છીએ. ભાવથી સાંભળજો, વિચારજો, પોતાની દ્રષ્ટિને ખીલવજો અને આ પર્યુષણથી કંઈક એવો બોધ પામીને જાઓ કે આપણા ભવના પર્યુષણ ઉપર ચોકડી લાગી જાય. શું પર્યુષણ ઉપર ચોકડી લાગી જાય? એનો મિનિંગ શું થાય? પ્રદૂષણ હોય તો પર્યુષણની જરૂર પડે. જેના દિલમાં પ્રદૂષણ ન હોય ને પર્યુષણની જરૂર કેમ પડે? આપણું દિલ એવું વિશુદ્ધ થઈ જાય, આપણે પરમાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરી લઈએ અને આપણા ભવિષ્યના તમામ પર્યુષણ ઉપર ચોકડી લાગી જાય તો આ પર્યુષણ સાર્થક થયા કહેવાય. ઓકે, મારા મંગલ આશીર્વાદ છે. જેમણે આયોજન ગોઠવ્યું છે તે સૌને મારા આશીર્વાદ છે અને સાથોસાથ આવીને આવી રીતે ભાવિમાં આપણે મળતા રહીએ, એકબીજાને કંઈક પમાડતા રહીએ, ધર્મ પામતા રહીએ, ધર્મ જાગૃતિ લાવતા રહીએ. એ જ ભાવો સાથે અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ આજના પ્રવચનને. પ્રવાદરાજ પર્યુષણ महापर्व के अवसर पर हमें इस कर्तव्य को बहुत ही भाव से समझना है. प्रभु ने कहा, जिसे प्रतिक्रमण भावपूर्वक आता है ना, वह कभी संसार के प्रति जाता नहीं है.
जो संसार से अभिमुख होता है उसका अतिक्रमण होता है, और जो संसार से प्रतिमुख होता है, संसार से दूर होने का पुरुषार्थ करता है, उससे ही कहा जाता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पाप का भी होता है, प्रतिक्रमण दोष का भी होता है। आपने सुना होगा प्रतिक्रमण पाप का भी होता है, प्रतिक्रमण दोष का भी होता है। जो आज होता है ना उससे पाप कहा जाता है, लेकिन जो पास्ट में होता है ना उसे दोष कहा जाता है। आज का भी किया जाए और पास्ट का भी किया जाए। पास्ट हमारे अंदर में जो वृत्ति बनकर, पाप वृत्ति बनकर हमारे अंदर में सेव होता है, और बार 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 वो वृत्ति बाहर में आ जाती है, और बार बार आती हुई वही वृत्ति रिपीट कराती है। क्या रिपीट कराती है? दोषों को रिपीट कराती है, भूलों को रिपीट कराती है, मिस्टेक को रिपीट कराती है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा दोषों को रोकना ये श्रेष्ठ है, लेकिन दोष को दोष के रूप में रियलाइज करना ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आप गुस्सा कर रहे थे और आपने गुस्सा स्टॉप कर दिया। आप गुस्सा कर रहे थे और आपने गुस्सा करना स्टॉप कर दिया। क्या होता है मालूम है? आपने पाप करना छोड़ दिया। लेकिन उस गुस्से की वृत्ति, उस एंगर की वृत्ति जो आपके अंदर में पड़ी हुई है ना, उससे पाप नहीं कहा जाता, उससे दोष कहा जाता है। और दोष बार 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 जो द्वित्व भाव सर्जता है ना, उसे दोष कहा जाता। द्वित्व की व्याख्या होती बार बार। जिस पाप को हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तब वो दोष हो जाता है। एक बार होता है तब वो पाप होता है, जब वो अनेकों बार हो जाता है तब वो दोष हो जाता है। और दोष हमेशा के लिए जन्म 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 साथ में रहता है। पाप तो जब करते हैं तब होता है, और फिनिश होता है तब फिनिश हो जाता है। लेकिन दोष हमारे साथ में बार 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 आता है, क्योंकि हमें बरोबर ध्यान में रखना है कि पाप है ना वह एक्शन की प्रोसेस है, लेकिन दोष है ना वो इमोशंस की प्रोसेस है। पाप हमेशा के लिए करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, ये 9 प्रकार की प्रोसेस होती है। और प्रोसेस जब होती है ना तब पाप होता है। प्रोसेस फिनिश हो जाती तब पाप नहीं होता। जैसे कि मानो कि आप सब्जी काट रहे थे, तो वो सब्जी काटना एक हिंसा का कार्य था। अब आपने सब्जी काटना छोड़ दिया और आपने सामयिक करनी शुरू कर दी, तो आपने क्या कर दिया? उस सब्जी काटने के पाप से मुक्ति ले ली, और आप तुरंत ही सामयिक की आराधना में बैठ गए तो पाप मुक्ति ले ली। पाप मुक्ति सहज है, क्योंकि वह मन, वचन, काया के योगों से होती है। पाप मुक्ति बहु सहेली, क्योंकि मन, वचन, काया ना योगो थी थाय। પરંતુ દોષ મુક્તિ કઠિન છે, કારણ કે તે માત્ર મન, વચન, કાયાના યોગોથી નથી થતી, એ આત્મા ઉપર પડેલા પાપના સંસ્કારોથી થાય છે. અને એટલા જ માટે પ્રભુએ કહ્યું પાપ મુક્ત થવું એ સાધના જ, પણ દોષ મુક્ત થવુંની સિદ્ધિ છે. પાપ મુક્ત થવું એ સાધના જ, પણ દોષ મુક્ત થવાની સિદ્ધિ છે. અને એટલા જ માટે ટેમ્પરરી સોલ્યુશન પાપ મુક્તિ છે, અને પરમાનેન્ટ સોલ્यूशन ये दोष मुक्ति है. इसीलिए परमात्मा ने कहा प्रतिक्रमण दोनों का होना चाहिए. प्रतिक्रमण दोनों का होना चाहिए. पाप का भी प्रतिक्रमण होना चाहिए और दोष का भी प्रतिक्रमण होना चाहिए. लेकिन हमने तो आज तक सुना है पाप का प्रतिक्रमण करो.
लेकिन पाप जब अंदर में रिपीट होते 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 वो हमारी मनोवृत्ति हो जाती, वो हमारे अंदर की वृत्ति बन जाती, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तब क्या होता है मालूम है कि जब हम सामयिक में भी शुभ भाव में बैठे होते हैं ना, मेडिटेशन में भी जब हम शुभ भाव में बैठे होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं से वो अटैक करता है। बिना निमित्त के जो अटैक करे उससे दोष कहा जाता है, और निमित्त से जो अटैक करे उससे पाप कहा जाता है। इस व्याख्या को समझना इसलिए जरूरी है कि भूतकाल में पाप का प्रतिक्रमण तो हमने लाखों बार किया होता है, लेकिन दोष का प्रतिक्रमण नहीं करने से हम वापिस अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण जब जब होता है ना, तो होता है तब होता है, लेकिन होने के बाद अतिक्रमण तो चला जाता है। लेकिन अतिक्रमण के संस्कार जब अति हो जाते हैं, अतिक्रमण के संस्कार जब अति हो जाते हैं, तब उससे दोष कहा जाता है। आ रहा है समझ में? हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो कहता हूं ना कि जूट बैग के अंदर में कीचड़ भर दो, जूट बैग के अंदर में कीचड़ भर दो और जूट बैग को ऊपर से सिलाई मार दो और फिर उस जूट बैग को नल के नीचे रख दो। वाह, जूट बैग बाहर से एकदम क्लीन हो गई, लेकिन थोड़ी देर में जूट बैग के अंदर से जो कीचड़ पड़ा होगा ना, उसके छेद में से बाहर आएगा। तो इस बार का संवत्सरी प्रतिक्रमण, इस बार का प्रतिक्रमण कैसा होगा? जूट बैग को स्नान कराने वाला कि जूट बैग को खाली करने वाला? जूट बैग खाली हो गई ना, अब उसे स्नान कराओ ना कराओ वो एकदम ही क्लियर है। और जूट बैग को खाली नहीं किया और बाहर से स्नान करा दिया, तो बाहर से वो एकदम हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में दोष की व्याख्या है कि 48 मिनट में हम पर अटैक करते हैं। हर दोष, याद रखना, हर दोष हर 48 मिनट में हमारे पर अटैक करते हैं। और इसीलिए भगवान ने भगवती सूत्र में इसका डिटेल से वर्णन दिया है कि क्रोध कितने मिनट में अटैक करता है, अहंकार कितने मिनट में अटैक करता है, लोभ कितने मिनट में अटैक करता है, राग कितने मिनट में अटैक करता है, उसका भगवान ने पूर्ण वर्णन दिया है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दोष 48 मिनट में अटैक करते हैं। पाप तो हो सकता है कि आज आपने सब्जी काटी तो हो सकता है 2 दिन तक आप सब्जी नहीं काटोगे। आज आपने स्नान किया, अभी 1 वीक के लिए स्नान नहीं करोगे। आपने को और पाप किया, चलो वो पाप लाइफ टाइम भी नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रतिक्रमण पापों का करें कि दोषों का करें। दोष वो होते हैं जिसे कहा जाता है पाप का इंटेंशन। दोष उसे कहते जिसे पाप का इंटेंशन, पाप के कारण को दोष कहा जाता है। और पाप करते करते जो पाप के संस्कार हो जाते उसे दोष कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इस बात पर बहुत गहराई से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए चिंतन करता हूं, इतने परेशान आए, इतने परेशान जाते हैं, इतनी धर्म आराधना करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम कहां पर है। मैं मेरी सेल्फ पर भी बार बार सोचता हूं, मैं समाज की स्थिति पर भी बार बार सोचता हूं, और मैं कभी कभी नींद में से उठकर इसी बातों पर लग जाता हूं कि मेरे साथ ही क्या होता होगा। मैंने इतना संकल्प किया था कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी सिचुएशन में मेरा वॉल्यूम हाई कैसे हो गया। तब इस बात की गहराई रियलाइज होती है कि गुस्सा करना छोड़ना आसान है, गुस्सा करना छोड़ देना यह आसान बात है। लेकिन हमारे अंदर में गुस्सा करने की जो वृत्ति होती है, एंगर की जो वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति
तो बार बार गुस्सा करने से, एंगर करने से हमारे अंदर में वो वृत्ति बन जाती है, वो संस्कार बन जाते हैं, वो मेमोरी बन जाती है, वो इमोशंस बन जाते हैं। और उसीलिए हम तो एक्शन का प्रतिक्रमण करते हैं, हम इमोशंस का प्रतिक्रमण कहाँ करते हैं। इसलिए इस बार संवत्सरी नजदीक में आ रही है, और नजदीक में आ रही संवत्सरी पर मेरी आपको ये प्रेरणा है, नजदीक में आ रही संवत्सरी के लिए मेरी आपको ये प्रेरणा है। क्या? जुटबेग को स्नान तो बहुत कराया, जुटबेग को स्नान तो बहुत कराया, इस बार मुझे जुटबेग को खाली करनी है। और जुटबेग को खाली करनी, यही तो मेरी सिद्धि हो जाएगी। वरना मेरी साधना तो बार बार होती रहेगी। साधना होगी, विराधना होगी, विराधना होगी, साधना होगी, वापस साधना होगी, वापस विराधना होगी। हम विराधना और साधना, साधना और विराधना के इस चक्कर में चलते रहेंगे और अपने आप को संतोष मानेंगे कि मैंने धर्म ध्यान किया, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने आराधना कर ली, मैं एकदम विशुद्ध हो गया। देवानुप्रियो, इस बार अपने सेल्फ को, आपको मालूम है कई लोग अभी कपड़े निकालते हैं, अभी पानी में डालते हैं, धोना स्टार्ट करते धो डालते हैं। और कई लोग क्या करते मालूम है, उस कपड़े को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं और फिर उसका वॉशिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? पहले भिगो के रखते हैं। भिगो के रखने से क्या होता है मालूम है कि अंदर तक उस स्मेल को निकालने के लिए पानी पहुंच जाता है, साबुन पहुंच जाता है और फिर वॉशिंग बराबर होती है। देवानुप्रियो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण होगा तब होगा। हमें आज से अपने आप को भिगोना स्टार्ट कर देना है। लास्ट दिन, संवत्सरी के दिन बरोबर आए, लास्ट मिनट तक पहुंचे और डायरेक्ट इच्छा मैडम बनते तुभ्यम अपूर्णाय समण देशे परिक्रम संवत्सरी परिक्रम ठाय में संवत्सरी दान दर्शन जाता पतिजा चिंतनाथम कर्मी का संगम नमो निंतन नमो सिद्धानम। ये क्या होता है? इससे नुकसान नहीं है, मैं मानता हूं इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे जो बेनिफिट्स होना चाहिए ना, वो बेनिफिट्स भी नहीं होता है। करना ही है, श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही है, तो हम उसका प्लानिंग क्यों ना करें। इसलिए मेरा कहना आपको कि प्रतिक्रमण का प्लानिंग करो। क्या करो? प्रतिक्रमण का प्लानिंग करो। प्रतिक्रमण के जितने भी पाठ है, प्रतिक्रमण की जितनी भी आराधना है, उन सब आराधना में से 2-2, 3-3 पाठ पर रोज अनुप्रेक्षा शुरू करो। और वो अनुप्रेक्षा शुरू करने से, चलो आज मैंने ज्ञान के दोषों को देखा, कल मैंने दर्शन के दोषों को देखा, फिर मैंने अणुव्रतों के दोषों को देखा, फिर मैंने श्रवण सूत्र के दोषों को देखा, और उसमें से कहां मेरी ओर से, मेरे अंदर में दोष वृत्ति पड़ी हुई है, मुझे इसको निकालना है। क्या होगा मालूम है? पाप को निकालने में सेकंड चाहिए, लेकिन दोष को निकालने में लंबा समय चाहिए। पाप से मुक्त तो वर्धमान जैसे ही राजमहल को छोड़कर निकले ना, उसी दिन से, उसी पल से पाप मुक्त हो गए। लेकिन दोष मुक्त होने में वर्धमान महावीर को 12.5 साल लगे थे। हेलो, पाप मुक्त होने में वर्धमान महावीर को जैसे ही महल छोड़ा, पाप मुक्त हो गए। लेकिन दोष मुक्त होने में, दोष विशुद्धि करने में, अपने आप को ऑब्जर्व करने में, अपने आप को क्लीन करने में, अपने आप को विशुद्ध करने में 12.5 साल यदि वर्धमान को लगते हैं, यदि भगवान महावीर को लगते हैं, तो समझ जाओ मेरे कर्म वर्धमान से ज्यादा होंगे कि मेरे दोष वर्धमान से कम होंगे।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या अपने सेल्फ को पूछो कि मेरे दोष वर्धमान से ज्यादा होंगे कि वर्धमान से कम होंगे? आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। महावीर से आपके दोष ज्यादा होंगे कि कम होगी? हेलो, आंसर अपने सेल्फ को पूछो और पूछ के आपको आंसर देना है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरे और आपके दोष वर्धमान से ज्यादा हो सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि मेरे दोष तो वर्धमान से ज्यादा होंगे? कितने हैं समझते कि मेरे दोष, मेरे पाप, मेरे अवगुण वर्धमान से ज्यादा हो सकते हैं? आपको नहीं मालूम। हो सकता है कि आपके दोष वर्धमान महावीर से कम हो सकता है कि आप एकावतारी हो सकता है कि ये भव पूरा करने के बाद, एक देवलोक का भव पूरा करके एक भव में ही उसके बाद में आपका महाविदय में जन्म हो जाए और आपके पापों की विशुद्धि से आप जल्दी मोक्ष में चले जाएं। इट्स पॉसिबल। कभी भी ये नहीं मानना कि मेरे पाप भगवान से ज्यादा है। हो भी सकता है, लेकिन हां, मेरा अभी समय नहीं हुआ था, अब मेरा समय होते जा रहा है, इसलिए मैं मेरे पापों की विशुद्धि कर रहा हूं। और पापों की विशुद्धि करते 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 अपने दोषों की विशुद्धि करते करते हो सकता है कि महावीर ने, वर्धमान ने संयम लिया और 12.5 साल लगे। हो सकता है आपको संयम जीवन का शिकार करने के बाद 12.5 मिनट में भी केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन प्लानिंग क्या चाहिए? लेकिन प्लानिंग। जैसे मैंने कहा ना कि कई लोग लास्ट मिनट कपड़े को भिगोते धोते हैं और कई लोग पहले से भिगोते थे। मुझे अपनी सेल्फ को चैलेंज देना है कि हे आत्मन, 12.5 साल नहीं लगने चाहिए। हे आत्मन, 12.5 साल नहीं लगने चाहिए। अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। अपने एक एक दोष को देख देख के, अपनी एक एक भूलों को देख देख के, अपने एक एक मिस्टेक को देख देख के, अपने अंदर के अहंकार को देखकर, अपने अंदर के एंगर को देखकर, अपने अंदर के ईगो को देखकर, अपने अंदर की विषय विकार वासना को देख देखकर, अपने अंदर की इच्छाओं को देख देखकर धीरे 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 स्मॉल प्रतिक्रमण करते 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 महावीर का सूत्र मोहम मोहम मोह गुणे जयंतन, धीरे 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 करके तुझे अपने मोह गुणों को जीत लेना है। और इसीलिए मुझे आपको ये कहना है, आज के पाप को कल का दोष मत होने देना। आज की पाप को कल का दोष मत होने देना। पाप की सिचुएशन ये आपकी संसार की परिस्थिति है। पाप की सिचुएशन ये हमारी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इस सिचुएशन को बार बार अपने इमोशंस के साथ जोड़ना नहीं है। सिचुएशन के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, तो पाप में से दोष में कन्वर्ट हो जाता है। पाप में से दोष में कन्वर्ट हो जाता है और दोष का प्रतिक्रमण कठिन होता है। जब सिचुएशन के साथ इमोशंस ज्यादा नहीं जुड़ते ना, तो समझ लेना कि भगवान महावीर का एक सूत्र है, उल्लोस को ये 2 गोला। भगवान महावीर ने कहा मिट्टी के 2 गोले, एक होता है सूखा और एक होता है गीला। सूखे गोले को फेंका जाए तो दीवार को टच करके नीचे आ जाता है, लेकिन जो गीला होता है ना, वो चिपक भी जाता है और निकालने में बहुत देर लगती है। महावीर ने कहा, और मैं ये कहता हूं कि
जिस सिचुएशन के साथ, जिस एक्शन के साथ हमारे इमोशन मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिट्टी गिली हो जाती है, एक्शन गिली हो जाती है, एक्शन के साथ इमोशन मिल जाते हैं और फिर वो ऐसे चिपक जाते हैं कि वो दोष बन के बार बार रिपीट करते हैं। और जो पाप होता है ना, वो तो किया, अभी फिनिश हो गया, बात फिनिश हो गई। फिनिश होने पर फिनिश हो जाए, पाप फिनिश होने पर फिनिश हो जाए, तो समझना कि आप साधक है। पाप फिनिश हो जाने पर वापस रिपीट हो जाए तो समझ लेना कि आप दोषित है। हो सकता है कि आपको, मैंने कई मम्मी को देखा है, कभी कभी क्या होता है, किसी के घर पे उतरना होता है ना, तो फिर जिसके घर हम लोग उतरते ना, वहां पे तो सब लोग एकदम भगवान के संतान की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो रहना ही पड़ता है। लेकिन पड़ोस में जो घर होता है ना, उसकी आवाज कभी कभी आती है, और जब आवाज आती है तब कभी किसी मम्मी को गुस्सा आ जाता है उसके छोटे बच्चे के ऊपर। मुझे एक्सपीरियंस है कि फिर क्या होता है, फिर उसको पड़ती है, एक दो पड़ती है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस दो चार पड़ती है। अब एक दो उसको लग गई, उसके बाद में वो बच्चा रोता है, थोड़ा 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 रोता है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही वापस मम्मी फ्री होती है ना, फिर वापस आती, एक तो खोटू करूच, ऊपर थी रोच, हूं तारो नहीं चलावी लो, एम कन फरी पाछा। मैं भी घाटकोपर में था किसी के घर, तो मुझे ये अनुभव था। तो हुआ क्या, मुझे याद आ गया। मुझे कहना कुछ अलग है, ये तो सिर्फ एक समझने की बात है। मानो कि उसने पहले दो चांटे जब लगाए थे ना, तब तो उनके अंदर का वो पाप था, तब उनके अंदर का वो एंगर था। अब क्या हो गया, वो फिनिश भी हो गया था, लेकिन फिनिश होने के बाद अभी वो एक्शन फिनिश हो गई थी, अंदर के इमोशंस फिनिश नहीं हुए थे। और अंदर के इमोशंस फिनिश नहीं हुए थे ना, इसलिए हुआ क्या, इसलिए उसने वापस आकर वापस और दूसरी बार, क्योंकि उनके अंदर के इमोशन ने उनकी एक्शन को प्रेरित कर दिया। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्या पाप हमारी परिस्थिति होती है, दोष हमारी मनोस्थिति होती है। पाप हमारी परिस्थिति होती है, लेकिन दोष हमारी मनोस्थिति होती है। और इसीलिए प्रतिक्रमण करना है, तो जब हम होठों से प्रतिक्रमण करते हैं ना, पाठ से प्रतिक्रमण करते हैं ना, इच्छामिणम मनते तुभ्य मुनाय समाने देहि परिक्रमण ठाय में देश संवत्सरी परिक्रमण ठाय में संवत्सरी नाहं दसन चतुर्थ पतिचा चिंतनाथम करिम काशगम, तब एक्शन से एक्शन का प्रतिक्रमण होता है। लेकिन जब हमारे अंदर में पश्चाताप का भाव बढ़ जाए, जब हमारे अंदर में पश्चाताप के इमोशंस आ जाए, तो इमोशंस को दूर करता है। गुड इमोशंस बैड इमोशंस को क्लियर कर देता है। और इसीलिए मुझे यह कहना है कि इस बार संवत्सरी प्रतिक्रमण के पाठ जब बोले, जब आप करो, जब कोई कराता है, आपको आता है तो श्रेष्ठ, नहीं आता है और कोई कराता है, उसके पहले क्या करो, अभी से प्रतिक्रमण की बुक हाथ में लो और एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग, उसके अंदर के एक एक सीक्रेट, ऐसे ऐसे सीक्रेट बताए भगवान ने। जम संभ्रामी जमच न संभ्रामी, जम पड़ी कमामी जमच न पड़ी कमामी। मुझे जो भी याद आया है वो तो आपको कह दिया है, लेकिन मुझे जो याद नहीं आया ना, उसका भी हे प्रभु प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, उसका भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे उस दोषों से भी मुक्ति चाहिए। मुझे प्रभु याद करा देना कि मेरे अंदर में और कौन से दोष है। याद रखना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है ना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है ना,
तो हमें हमारी हर मिस्टेक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आत्मिक क्वालिटी और लाइफ की क्वालिटी, दोनों ही क्वालिटी। प्रतिक्रमण सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, प्रतिक्रमण तो लाइफ के लिए भी है। क्योंकि जब हम भाव से प्रतिक्रमण करते हैं तब हम दोषों के प्रति एक पश्चाताप करते हैं, और जब पश्चाताप करते हैं ना, तब अपने आप में ही हम उस भूल को रिपीट नहीं करने के इनडायरेक्ट संकल्प में आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट संकल्प फिर धीरे धीरे डायरेक्ट संकल्प हो जाता है। देवानुप्रिय याद रखना, दोष करने के अनंत भव होते हैं, पाप करने के भी अनंत भव होते हैं। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा, मैं गलत रॉन्ग एक्टिविटी को सिंफुल एक्टिविटी से पाप कह रहा हूं। अब मुझे आपको क्या कहना है, पाप करना और पाप छोड़ना ये एनिमल भी होता है। मानो कि मैं यहां पे गिर के जंगलों में सोचता हूं किस प्रकार से वो सिंह उस हिरण को खा जाता होगा, लेकिन खा लिया, अब वो 2-4 दिन के लिए शांति से बैठा है, अब वो कुछ नहीं करता, तो उसने उस समय में कोई पाप नहीं किया, तो आप उस समय के लिए उसको पापी नहीं कह सकते, राइट? लेकिन वो पापी नहीं है, लेकिन उनके अंदर में शिकार करने की जो वृत्ति पड़ी हुई है, वो दोष तो पड़ा हुआ है। जैसे 2 दिन के बाद वो दोष वापिस बाहर आएगा। तो पाप को छोड़ने वाला, दोष को छोड़ने वाला जब तक नहीं बनता, तब तक वो पाप को रिपीट करने वाला होता है, क्योंकि दोष पाप की मदर होती है, क्योंकि दोष पाप की मदर होती है। बिना दोष के कोई पाप होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमें याद रखना है, मुर्गी ही अंडे का कारण है, अंडा एग ही मुर्गी का कारण होता है, और वापस एग में से मुर्गी और मुर्गी में से एग। पाप में से दोषों का सर्जन होता है, दोष में से पाप का सर्जन होता है, पाप में से दोष का सर्जन होता है, और फिर ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसलिए आज संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले हम प्लानिंग करें प्रतिक्रमण का। क्या करें? हम प्लानिंग करें प्रतिक्रमण का। और प्रतिक्रमण क्या है? सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम का सो नहीं है। ये तो मिच्छामि दुक्कडम की श्रेष्ठ प्रभु द्वारा दी गई एक ऐसी वरदानमय स्थिति है कि जिसके द्वारा हम पाप से विशुद्ध होने की यात्रा पर आगे बढ़ सके।